یہ داستان ہے ایک ایسی زمین کی جس کے نام میں ہی تاریخ اور جغرافیہ کی گونج چھپی ہے۔ پنجاب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ دریاؤں کی شریانوں نے یہاں نہ صرف زمین کو ہرا بھرا رکھا بلکہ لوگوں کی سوچ، ان کے رواج، ان کی آواز اور ان کے گیت بھی تراشے۔ آج ہم اس پہلے حصے میں اسی زمین کی گہرائیوں میں اتریں گے، اس کے قدیم ورثے سے لے کر اس کی زبان، ثقافت اور لوگوں کی روزمرہ زندگی تک۔ ہم دیکھیں گے کہ پنجابی بننے کا مطلب کیا ہے، کیا یہ صرف نسل ہے یا ایک زندہ ثقافتی شناخت، اور ہم جانیں گے کہ یہ خطہ کیسے کئی تہذیبوں اور فصلوں کا گھر بنا۔ زمین اور دریا کی زبان۔ پنجاب کی تاریخ زمین کے ساتھ گتھی ہوئی ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں فصلیں ہری بھری لہریں بناتی ہیں، جہاں دریاؤں کی سرگوشیاں کسان کے کانوں تک پہنچتی ہیں اور جہاں ہر فصل کے بعد کھیتوں میں جشن کا سما ہوتا ہے۔ دریا نہ صرف پانی کے بہاؤ ہیں بلکہ یہاں کی زندگی کے محور ہیں۔ راوی، چناب، جہلم، ستلج اور بیاس، یہ 5 نہروں ندیوں نے پنجاب کو وہ شناخت دی جو اسے دنیا میں منفرد بناتی ہے۔ قدیم تہذیب کا گھر۔ یہی وہ زمین ہے جس نے دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ جب ہم ہڑپا یا موہنجو دڑو کے آثار کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف عمارتیں یا مٹی کے ٹکڑے نہیں دیکھتے، ہم ایک مکمل تہذیبی نظام کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ منصوبہ بند شہر، نکاسی آب کے نظام، تجارت کے راستے اور سماجی رویوں کی جھلک۔ پنجاب کا قدیم چہرہ بتاتا ہے کہ یہاں لوگوں نے کھیتی، تجارت، صنعت اور فنون میں کس قدر ترقی کی۔ اس علاقے کی خوشحالی نے اسے صدیوں تک بیرونی طاقتوں کے لیے کشش بنایا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ زمین اکثر قوتوں کا مرکز بنی رہی۔ پنجاب پر آنے والے مختلف لہروں نے یہاں کے لوگوں کے لباس، بول چال، رسم و رواج میں اپنے نشان چھوڑے۔ آریاؤں کی آمد نے زبانوں اور مذہبی تصورات میں تبدیلیاں لائیں۔ ایرانی اور وسطی ایشیائی شاکے نے یہاں کی ثقافت کو نئے رنگ دیے۔ جب سکندر اعظم کی فوج یہاں پہنچی تو ایک نئی تاریخی شروعات کا باب کھلا۔ یونانی اور مقامی تہذیبوں کی آمیزش سے ثقافتی میل جول میں اضافہ ہوا۔ بعد میں ہن اور دوسرے وسطی ایشیائی حملہ آور بھی آئے جنہوں نے اس علاقے کے سماجی و عسکری ڈھانچے کو متاثر کیا۔ ہر دور نے پنجاب کی تہذیب میں ایک نیا باب لکھا، اور پنجابی شناخت کا آئینہ اس مسلسل ملاپ میں تراشا گیا۔ پنجاب ہمیشہ روحانیت اور مذہبی جدت کا گھر رہا۔ یہاں صوفیاء نے اپنی دعوتیں دیں اور لوگوں کے دلوں کو امن و محبت کی طرف مائل کیا۔ بابا فرید، بلہے شاہ اور شاہ حسین جیسے صوفی شعراء نے نہ صرف شاعری میں نئے انداز متعارف کرائے بلکہ لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بھی روحانیت کا رنگ بھر دیا۔ ان کے کلام میں انسانیت کی عاطفہ، عشق حقیقی اور سماجی مساوات کے پیغامات گونجتے ہیں۔ اسی زمین پر ایک نیا مذہب بھی جنما، سکھ مت، جس کے بانی بابا گرو نانک نے مساوات، خدمت اور بندگی کے اصولوں پر زور دیا۔ گرو نانک کا پیغام صرف مذہبی عقیدے تک محدود نہ رہا، اس نے پنجابی سماج میں اخلاقی اور سماجی تبدیلیاں لانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بعد کے گروز اور گوردوارے نے ایک اجتماعی شعور کو جنم دیا جس نے پنجاب کے سماجی ڈھانچے کو مضبوط کیا۔ پنجابی زبان یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک پورا ثقافتی نظام ہے۔ اس زبان نے محبت، مزہ، غم اور جشن کو بڑے خوبصورت انداز میں سمیٹا۔ وارث شاہ کی ہیر رانجھا میں محبت کی ایسی گہرائی ہے جو ہر دور کے انسان کو چھو لیتی ہے۔ بلے شاہ کے کلام میں روحانیت اور انسان دوستی کی پکار ہے۔ پنجابی نے عوامی آواز بن کر خود کو ہر طبقے تک پہنچایا۔ مزدور، کسان، سپاہی، ادیب، سب نے اسی زبان میں اپنا درد، خوشی اور امید بیان کی۔ لوک کہانیاں، قصے اور محاورے پنجابی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ گدھا اور بھنگڑا کی تال، ڈھول کی تھاپ اور لوگوں کی ہنسی، یہ سب پنجابی زبان کے جذباتی اظہار ہیں۔ پنجابی ادب نے زندگی کے ہر رنگ کو لفظ دیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس زبان کی طاقت آج بھی برقرار ہے۔ پنجاب میں کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ثقافتی اعلان ہے۔ ساگ اور مکی، دیسی مزہ، چاٹوں کی رونق، لسی کا گھونٹ، یہ سب پنجابی ذائقوں کی کہانی ہے۔ میزبان یہاں ایک فرض ہے۔ گھر میں آنے والے کو عزت اور پیار ملتا ہے، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ تہواروں پر گھرانے
एक मेज के गिर्द जमा होते हैं, गपशप और महफिलें बनती हैं और खाने के जरिए लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। भंगड़ा, गिद्धा, तिप्पी ये वो सकाफती इजहार हैं जो पंजाबी जिंदगी की तवानाई और जोश को सामने लाते हैं। ढोल की थाप पर जब लोग जमकर रक्स करते हैं तो एक इज्तिमाई तवानाई मंजर आम पर आती है। पंजाबी मौसीकी ने सूफी, क्लासिकल, लोक और पॉप को एक साथ मिलाकर नई जहतें पैदा की हैं। नुसरत फ़तेह अली खान जैसी आवाज़ें सूफियाना कलाम को आलमी मंच तक ले गईं और दौरे जदीद में नए फनकार पंजाबी धुन को बैनुल अक़वामी तर्ज के साथ जोड़ रहे हैं। पंजाब मरकज़ रहा, कभी मुग़ल बादशाहत की फ़ौजों ने इस पर हुक्मरानी की तो कभी अफ़गान और बहादुर कबाइल ने यहाँ के मैदान अपनी पहुँच दिखाई। एक दौर ऐसा भी आया जब पंजाबी खुद एक मजबूत रियासत के तौर पर खड़ी हुई, महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत। रंजीत सिंह ने ज़मीनी सतह पर एक मजबूत, मुत्तहिद और ताकतवर पंजाब कायम किया, जिसने हत्तल इम्कान अमन और खुशहाली के लम्हात देखे। इस दौर में लाहौर एक मरकज़े फ़न, किला और बाज़ार था, एक ऐसा शहर जो तहजीब, सकाफत और ताकत का संगम बन गया। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने पंजाब को एक अलग सियासी और इक्तसादी मुकाम दिया। ज़राअत को मुनज़्ज़म किया गया, रेलवे, पुल और सड़कें बनी, मगर इस तरक्की के साथ इस्तेहसाली निज़ाम भी आया। किसानों को ज़मीन की नई कीमतें, टैक्स और फसलों की मार्केट की नई तरतीब ने छू लिया। इसके साथ ही फ़ौज में पंजाबी जवानों की भर्ती ने उन्हें बरतानवी सल्तनत का अहम हिस्सा बना दिया। अंग्रेज़ दौर के असरात ने पंजाबी समाज में कई मुस्बत और मनफी तब्दीलियां पैदा कीं। जदीद तालीम, इंतज़ामी ढांचे और आलमी धारों से राब्ता, मगर साथ ही रवायती साख्तों में दरारें नहीं पड़ीं। पंजाब में मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती ग्रोहों का इश्तराक उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुनफरिद बनाता है। बाज़ारों की रौनक, मेले, होलियाँ, बसंत और ईद ये सब यहाँ के लोगों के रवायती कैलेंडर का हिस्सा है। मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर तीनों जगहों की आवाज़ें इस सरजमीन की सकाफती हमाहंगी को जाहिर करती हैं। इस इश्तराक ने पंजाबी शनाख्त को और मजबूत किया, एक ऐसा मवाद बनाया जिसमें अलग अलग धारे मिलते हैं मगर एक मुश्तरका सरजमीन की मोहब्बत सभी में मौजूद रहती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा हुनर और कारीगरी में नाम कमाया। रवायती कपड़े, खजूर के बने हुए बर्तन और लकड़ी के काम, ये तमाम दस्तकारी यहाँ के रहन सहन में गहरा असर डालती हैं। सनती इनकलाब ने भी पंजाब के कुछ शहरों को नया रूप दिया। सियालकोट, लुधियाना, जलंधर ये शहर आज भी आलमी मार्केटों के लिए मसनूआत तैयार करते हैं। पंजाबी कारीगरी का दायरा ग्लोबल सतह पर फैला हुआ है और ये इस खित्ते की माशी तवानाई का अहम हिस्सा है। पंजाबी ख़वातीन ने घर और मुआशरे दोनों में अहम किरदार अदा किया है। वो किसान, मेहनत कश और सकाफती मुहाफ़िज़ हैं। तारीख़ी तौर पर ख़वातीन ने घरेलू बुनत और रवायत को बरकरार रखा, मगर असरी दौर में उन्होंने तालीम, सियासत और तिजारत में भी कदम बढ़ाए। देहात से शहरों तक ख़वातीन की सरगर्म शमूलियत ने पंजाबी समाज में नई राहें खोली हैं और ये तब्दीली मुस्तकिल है। लाहौर, अमृतसर और दीगर शहरों में बनने वाले तालीमी इदारे इस खित्ते की रोशन मिसाल हैं। इल्मी रवायात ने पंजाबी नौजवानों को जदीद तालीम के साथ जोड़ा। अदबी और इल्मी मेलों ने अफकार को जन्म दिया और यहाँ के तालीमी मराकिज़ ने पूरे बरे सगीर में अपना असर छोड़ा। पुराने मदरसे, कॉलेज और जदीद यूनिवर्सिटियाँ ये सब पंजाब की ज़हनी और इल्मी ताकत का इजहार है। अगरचे पंजाबी ज़बान का गहरा तारीख़ी विरसा है, मगर जदीद दौर में उसकी हिफाजत आसान नहीं रही। शहरीकारी, मीडिया की ज़बानों का दबाव और तालीमी पॉलिसियों ने पंजाबी बोलने और लिखने वालों को नए इम्तिहानों में डाल दिया है। मगर इसके बावजूद पंजाबी सकाफती तंजीमें, अदबी हल्के और माहिरीन लिसानियात इस ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। रेडियो प्रोग्राम्स, थिएटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने नए दौर की पंजाबी आवाज़ों को उभारा है। कबड्डी, कुश्ती और दीगर रवायती खेल पंजाबी नौजवानों की जिस्मानी तवानाई और मुश्तरका जज्बे को जाहिर करते हैं। कबड्डी जैसे खेल ने न सिर्फ देही सतह पर लोगों को जोड़ा, बल्कि बैनुल अक़वामी लीग्स की शक्ल में भी परवान चढ़ा। ये खेल पंजाबी जिस्मानी सकाफत की अलामत है, ताकत, चालाकी और टीम वर्क का इम्तिजाज। पंजाबी मौसीकी ने हमेशा
अपनी लोक जड़ों को जदीद कोर्सेज के साथ जोड़ा। क्लासिकल राग, सूफी कलाम और पॉप मिक्सचर ने पंजाबी मौसीकी को दुनिया भर में मकबूल बनाया। देसी तर्ज के अलावा पंजाबी धुनों को बैनुल अक़वामी इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और दुनियावी साज़ों के साथ मिलाकर नए तजर्बात होते रहे हैं। इसकी वजह से पंजाबी मौसीकी आज नौजवानों में भी एक ताकतवर शनाख्त है। पंजाब में त्यौहार जिंदगी का हिस्सा हैं। लोसंग, बसंत, मीलाद, ईद, दिवाली, ये सब लोगों को जमा करते हैं। मेले ख़ास तौर पर पंजाबी सकाफ़त के रंग हैं। लोक फ़न, मौसीकी, कबड्डी और हुनरमंदी का इज्तिमा। मेले ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया हैं, बल्कि ये सकाफ़ती तबादलों और मकामी माईशत के लिए भी अहम हैं। पंजाब की ये कहानी, इसका ज़मीन, ज़बान और लोक विरसा एक वसी कैनवस है। यहाँ हर दिल में एक कहानी है, हर घर में एक तारीख़ है और हर खेत में एक जद्दोजहद। लेकिन जहाँ ये खूबसूरत मंजरनामा था, वहाँ एक ऐसा ज़माना भी आया जिसने पंजाब की रूह को झंझोड़ दिया। एक ऐसा दौर जिसने इस ज़मीन पर बसने वालों की ज़िंदगियाँ बदल दीं। पंजाब की ये दास्तान ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ आगाज़ है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह 1947 की तकसीम ने इस धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया और पंजाबी कौम ने किस तरह इस अलमिये के बावजूद खुद को दोबारा संभाला। ये सफ़र ज़मीन से जद्दोजहद और फिर आलमी शनाख्त तक अभी जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि पंजाब की पूरी तारीख़, इसकी तकसीम और दुनिया में पंजाबी कौम के किरदार को मज़ीद गहराई से जानें, तो लाजमी सब्सक्राइब करें चैट सीख 24/7 को। यही वो जगह है जहां आपको मिलेगी तारीख़ की सबसे ज़िंदा कहानियां, गहरे तज्ज़िये और ऐसी मालूमात जो आप कहीं और नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।